चलो आज लिख लो। आज का टॉपिक ये सब टॉपिक है डेफिनेशंस डेफिनेशंस ऑफ हायर परचेस सिस्टम। डेफिनेशंस ऑफ हायर परचेस सिस्टम। बस 2 डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा नहीं है, बट है कि थोड़ी से लंबे हैं ये जनरली जो डेफिनेशंस होते हैं उनके मुकाबले, बट अब है तो लिखना है हम लोगों को। तो डेफिनेशंस ऑफ हायर परचेस, डेफिनेशंस ऑफ हायर परचेस। आशुतोष, डेफिनेशन है कि अगर छूट गया है तो आर लिखना है, यही कोड वर्ड है, ठीक है। और पूरा छूट गया तो आर ए लिखना है, बट वो रेयर केस में यूज होगा, ठीक है। चलो लिखना शुरू करो। वेरियस ऑथर्स हैव डिफाइंड हायर परचेस सिस्टम एज अंडर। वेरियस ऑथर्स हैव डिफाइंड हायर परचेस सिस्टम। Various authors have defined hire purchase system as under। चलो डेफिनेशन नंबर 1 लिख लो। डेफिनेशन नंबर 1 लिख लो डबल इन्वर्टेड कॉमा से। अंडर हायर परचेस सिस्टम, अंडर हायर परचेस सिस्टम, अंडर हायर परचेस सिस्टम, कॉमा गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए पर्सन। सिस्टम के बाद कॉमा गुड्स आर डिलीवर्ड, goods are delivered to a person, to a person who agrees, goods are delivered to a person who agrees to pay the owner, who agrees to pay the owner, agrees to pay the owner the equal, the equal, the equal, the equal periodical, पीरियोडिकल की स्पेलिंग मैंने डाल दी है, अब मैं खुद ही डाल दिया करूंगा। इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स, कॉमा such installments are to be, such installments are to be, such installments are to be, such installments are to be treated as hire, are to be treated as hire of these goods, hire of these goods until, until, until a certain fixed amount, until a certain fixed amount, until a certain fixed amount has been paid, has been paid, comma when these goods become, when these goods become, when these goods become property of the hirer, property of the hirer, property of the hirer, 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 फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और इसके राइटर हैं J.R. Bartley बॉय, J.R. Bartley बॉय। स्पीड आप बढ़ाकर ही रखेंगे। J.R. Bartley बॉय मैं डाल दे रहा हूं चैट बॉक्स में, ठीक है, आप देख लेंगे इसको।
J.R. Bartley Boy. So such installments are to be treated as hire of these goods until a certain fixed amount until a certain fixed amount has been paid, comma, when these goods become the property of the hirer. When these goods become the property of the hirer. सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. अंडर हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए पर्सन. इस सिस्टम में गुड्स एक पर्सन को डिलीवर किए कर दिए जाते हैं जो एग्री करता है कि वो पेमेंट जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करेगा. सच इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी ट्रीटेड एज हायर ऑफ दीज गुड्स. और इन इंस्टॉलमेंट को क्या किया जाना है, एक चार्ज के रूप में ट्रीट किया जाना है, ना कि पेमेंट्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एसेट्स until a certain fixed amount has been paid. जब तक कि जो निर्धारित पैसा है वो पेड नहीं कर दिया जाता है, जब ये संपत्ति हायरर की प्रॉपर्टी बन जाती है. नेक्स्ट डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन नंबर 2. हायर परचेज इज सिस्टम hire purchase is the system under which hire purchase is the system under which the property is acquired. The property is acquired. The property is acquired. Hire purchase is the system under which the property is acquired. The property is acquired. The property is acquired by payments made. By payments made. By payments made in installments. In installments. By payments made in installments, comma, during the period of which the title of the property remains with the hire vendor. Remains with the hire vendor. इंस्टॉलमेंट पेमेंट के द्वारा एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाती है ना, और पेमेंट के ड्यूरेशन में जो टाइटल है, जो ओनरशिप है, वो किसके पास रहती है? हायर वेंडर के पास, विक्रेता के पास ही रहती है. फुल स्टॉप दो, उसके बाद आगे लिखो इसी में, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ है. ठीक है. द पेमेंट प्रायर टू द फाइनल पेमेंट. द पेमेंट्स prior to the payments prior to the final payment are the payments prior to the final payments are regarded as being purely in respect of hire.
comma, and the title of the property, and the title of the property does not pass to the 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 hire purchaser until such final payments such final payments or or same other consideration provided for in the contract has been fulfilled. सेम को सम कर लो, गलती हो गई थोड़ी सी. सेम अदर कंसिडरेशन को सम कर लो. सम अदर कंसिडरेशन प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फुलफिल्ड. रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत लोगों का आया है रिपीटिशन के लिए. द पेमेंट प्रायर टू द फाइनल पेमेंट्स the payment prior to the final payment are regarded as 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 being purely in respect of hire, being purely in respect of hire, and the title of the property and the title of the property does not pass to the hire purchaser until such final payment or some other consideration provided for in the contract has been fulfilled. In the contract has been fulfilled. In the contract has been fulfilled. ठीक है. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज. और इसके ऑथर जो है उसका नाम मैं डाल दे रहा हूं आपको चैट बॉक्स में. विलियम पिकल्स हैं इसके ऑथर. मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूं. आई होप अब तो किसी का नहीं छूटा होगा. थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं. तो क्या कहता है कि हायर परचेज में एक प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है और पेमेंट के ड्यूरेशन में जो ओनरशिप है वो किसके पास रहती है? हायर वेंडर के पास, बेचने वाले के पास, खरीदने वाले के पास नहीं रहती है. ठीक है. उसके बाद कहता है द पेमेंट प्रायर टू द फाइनल पेमेंट्स आर रिगार्डेड एज बीइंग प्योरली इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर. हायर का देखो शाब्दिक जो अर्थ होता है ना वो ये होता है किराए पर किसी चीज को लेना या उपयोग करने के लिए लेना किसी चीज को. जैसे क्या है
कि आपके घर में कोई आयोजन होता है तो आप कुछ बर्तन हायर करते हैं, है ना, टेंट डेकोरेशन का सामान हायर करते हैं, तो मतलब क्या होता है कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे माना जाएगा कि आप प्रयोग के बदले में जो पेमेंट कर रहे हैं, ओनरशिप आपकी नहीं है। जैसे कि आप टेंट वाले का जो सामान लेकर के आते हैं शादी में, वो आपकी तो नहीं हो जाती है, उसकी ओनरशिप तो उसी के पास रहती है, आप सिर्फ उसको क्या देते हैं, चार्जेस देते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो द पेमेंट प्रायर टू फाइनल पेमेंट्स आर रिगार्डेड एज बीइंग प्योरली इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर एंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द हायर परचेजर अंटिल सच फाइनल पेमेंट। पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती है जब तक कि फाइनल पेमेंट ना हो जाए। अब देखो ये जो लास्ट लाइन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। कंसिडरेशन जो मतलब है ना, कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले में कुछ, कुछ के बदले में कुछ। एक ट्रांजैक्शन होता है तो उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन कभी कोई और चीज भी दी जा सकती है उसके बदले में, लेकिन वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर किसी को पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए, तो वो मुझे पैसे में भी दे सकता है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए कंसिडरेशन। वो मेरा कोई काम कर दे सकता है ना, या कोई और दूसरी चीज मुझे दे सकता है जो एज ए मेरी फी कंसिडर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल हिंदी में, और उसके डिटेल में जाए तो उसका मतलब होता है कुछ के बदले में कुछ। तो यहाँ जो लास्ट लाइन आपकी कहती है सम अदर कंसिडरेशन प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इन हैज बीन फुलफिल्ड, फाइनल पेमेंट या और कोई ऐसी कंडीशन है ना जो कि फुलफिल की जानी चाहिए थी, वो फुलफिल हो जाती है, तब ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस डेफिनेशन का मतलब यही था। थैंक यू भागवत। समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ये भागवत ने कहा है, कुछ के बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न। चलो डेफिनेशन खत्म हो गया, थोड़ा सा एनालाइज कर लें डेफिनेशंस को, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हेंस आफ्टर एनालिसिस ऑफ, हेंस पैरा चेंज करके लिखेंगे, हेंस आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ, हेंस, हेंस के बाद कॉमा देंगे, हेंस आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स एंड definitions, facts and definitions, facts and definitions, we can say that facts and definitions, hence comma after an analysis of the above mentioned facts and definitions, we can say that system of sales and purchase, system of sales and purchase where the title of the goods where the title of the goods are not immediately transferred to the purchaser but after the final payment of sales amount, but after the final payment of sales amount is popularly known as hire purchase system,
hire purchase system or transaction. Full stop. Full stop. The payment made. The payment made. The payment made until the payment made until the last installment until the last installment is the payment made until the last installment is treated as higher charges is treated as higher charges. Next topic. आगे. Features of hire purchase system. 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 इसमें एक लाइन नीचे लिखो, उसके बाद पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे. द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हायर परचेस सिस्टम. द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हायर परचेस सिस्टम आर एज अंडर. द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हायर परचेस सिस्टम आर एज अंडर. रोमन में नंबर 1 2 ऐसे करके लिखना, स्मॉल रोमन. There is an agreement between the hire purchaser and the hire vendor. There is an agreement between the hire purchaser and hire vendor, that is the seller. चलो विशाल सोनी क्या कहना है सर? रिपीट ऑल. ओके. फीचर्स ऑफ हायर परचेस सिस्टम मैंने लिखवाया है. फीचर्स ऑफ हायर परचेस सिस्टम ये टॉपिक है, ठीक है. और उसके नीचे हम लोगों ने लिखा है द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हायर परचेस सिस्टम्स आर एज अंडर. द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हायर परचेस सिस्टम आर एज अंडर. और जो पहला पॉइंट है वो मैंने लिखवाना है कि देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, दैट इज द सेलर. दैट इज द सेलर. There is an agreement between the hire purchaser and hire vendor, that is the seller. Point number 2. Point number 2. The hire vendor only transfer the hire vendor only transfer the possession. स्पेलिंग में डाल दे रहा हूं. The hire vendor only transfer the possession of the goods to the hire purchaser
to the hire purchaser immediately after the contract for hire purchase is made. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि द हायर वेंडर विल ओनली ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यानी कब्जा। पोजीशन का मतलब होता है कब्जा या प्रयोग के लिए अधिकार देना, ठीक है। तो वो क्या है, कब्जा देता है किसको, पोजीशन ऑफ गुड्स टू द हायर परचेजर इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर परचेज इज मेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया दोनों पार्टी की तरफ से, उसके बाद गुड्स जो है परचेजर को ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड पॉइंट सेशन एंड होने वाला है, आप लोग रीज्वाइन करेंगे, जब तक चल रहा है चलेगा, 1 मिनट से भी कम का टाइम है। द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड बाय the goods should be delivered by चलो आगे लिखो, पॉइंट नंबर 3, द गुड्स शुड बी डिलीवर्ड बाय द हायर वेंडर, जिनका छूट गया हो वो लिख लेंगे। द goods should be delivered by the hire vendor on the condition the goods should be delivered by the hire vendor on the condition that the hire purchaser should pay the agreed amount. Hire purchaser should pay the agreed amount. In periodical installments. periodical के स्पेलिंग में डाल दे रहा हूं, in periodical installments. Point number 4. तो इसमें थर्ड का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा सुन लो कि गुड्स क्या है, डिलीवर्ड कर दिया जाता है किस कंडीशन पे कि हायर परचेजर जो है पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करेगा। पीरियोडिकल का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक निश्चित अवधि के बाद, जो अवधि निश्चित की गई है, एनुअली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द हायर purchaser generally makes a down payment. The hire purchaser generally makes a down payment अंडर ब्रैकेट में लिखो इनिशियल पेमेंट, on signing the agreement
The hire purchaser generally makes a down payment under bracket initial payments on signing the agreement and the balance of the amount and the balance of the amount and the balance of the amount along with interest and the balance of the amount along with the interest is paid in installments at regular intervals का स्पेलिंग भी मैं डाल दे रहा हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए रेगुलर इंटरवल्स चलो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये पॉइंट एंड ही होने वाला है एक दो वर्ड और बच गया इसमें मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग देख लेंगे द हायर परचेजर जनरली मेक्स ए डाउन पेमेंट अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे इनिशियल पेमेंट्स ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट एंड द बैलेंस ऑफ द amount along with interest is paid in installment at regular intervals for a specified period The balance of the amount along with interest is paid in installment at regular intervals for a specified period. Full stop. क्या है, डाउन पेमेंट कर दिया जाता है जो भी टोटल अमाउंट का है, कुछ पैसा नगद में तुरंत दे दिया जाता है साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट जब साइन होता है उसी वक्त, और बाकी का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट निश्चित अवधि में देने का एग्रीमेंट किया जाता है. यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स का मतलब है कि वही पीरियोडिकल 6 महीना में, क्वार्टरली महीने, हर महीने, तो उसको रेगुलर इंटरवल निश्चित अंतराल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड. जैसे स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब यहाँ पे हो गया कि हायर परचेज एग्रीमेंट होगा 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो कुछ भी आपस में वो लोग डिसाइड करेंगे, हायर वेंडर एंड परचेजर. फिफ्थ पॉइंट each installment including down payment अंडर ब्रैकेट लिखो if any, इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट, if any को अंडर ब्रैकेट में लिखना, if any is treated as higher charges, is treated as higher charges is treated as higher charges is treated as higher charges by the seller full stop. each installments इसी में कंटिन्यू करोगे. each installment consist partly of a capital payment, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लो. पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट और प्रिंसिपल का अमाउंट मिला करके हायर परचेजर वेंडर को देगा,
जैसा कि एग्रीमेंट में होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, ईयरली होगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो इज ट्रीटेड एज हायर चार्जेस, चाहे प्रिंसिपल हो या क्या हो, इंटरेस्ट हो, दोनों को मिला करके वो हायर चार्जेस ही ट्रीट किया जाएगा। और कब तक ट्रीट किया जाएगा? जब तक कि फाइनल पेमेंट ना हो जाती हो। ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ पार्टली अ कैपिटल पेमेंट। जैसे क्या है, आप लोग ध्यान देना कि अगर कोई चार्जेस है, चार्जेस मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है यहां पर। क्योंकि अगर कोई चार्ज है, कोई चीज यूज कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए वहां पर कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल के अगेंस्ट पेमेंट है, तो इट विल बी कैपिटलाइज्ड। और इस पर हम लोग बात करेंगे और भी। तो ये जो दूसरी लाइन थी उसका मतलब यही था कि पार्टली उसमें कैपिटल का पार्ट होता है। इंटरेस्ट तो चलिए एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डाल देंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रजत को कोई क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है भाई? लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 6 पॉइंट, each installment partly consists of each installment partly consists of finance charges. Each installment partly consists of फाइनेंस चार्जेस। अंडर ब्रैकेट लिखो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है? फाइनेंस चार्जेस, अंडर ब्रैकेट में इंटरेस्ट। एंड पार्टली ऑफ कैपिटल पेमेंट। अभी अभी हमने इस पर बात की कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इसको, कि कुछ प्रिंसिपल का अमाउंट होता है, कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 7th, the property in goods is the property in goods is passed the property in goods is passed to the hire purchaser on the payment of last installments, पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सिंपल सा है, जो कि इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है कि ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब, कहने को तो प्रॉपर्टी उसी के पास होती है, लेकिन एक्चुअल में पास कब होगी? जब फाइनल पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, द हायर परचेजर हैज द राइट the hire purchaser has the right the hire purchaser has the right to terminate terminate का स्पेलिंग में डाल दे रहा हूं। the hire purchaser has the right to terminate the agreement the hire purchaser has the right to terminate the agreement at any time before the property so passes। चलो रिपीट करने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो रिपीट कर देता हूं मैं। पॉइंट नंबर 7, द हायर परचेजर हैज द राइट टू, सर हाँ रिपीट कर रहा हूं मैं। 7th पॉइंट, द हायर परचेजर हैज द राइट
to terminate the agreement. The hire purchaser has the right to terminate the agreement at any time, at any time before the property, before the property so passes, before the property so passes. देखिए ये हायर परचेज एग्रीमेंट जो होता है ना, उसका सबसे विवादास्पद ये कंडीशन होता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जबकि फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दिया गया है तब। लेकिन अगर सेलर चाहे, वेंडर चाहे, तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके प्रॉपर्टी का पोजीशन, उसका कब्जा अपने पास ले सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। देखो ऐसा होता क्यों है, इसको क्यों रखा गया है? क्योंकि हायर परचेज के अंदर क्या है, हाई वैल्यू की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया जाता है और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देने की बात कही जाती है, लेकिन उनसे कोई कोलेट्रल यानी क्या कहते हैं उसको, कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, कोई संपत्ति उसके पास गिरवी नहीं रखी जाती है, तो उसको भी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए ना भाई। जनरली 99.95 केसेस में ऐसा नहीं होता है कि जो वेंडर है वो जानबूझ करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे और मान लो 100 इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए जाने थे और 99 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद हायर वेंडर ने प्रॉपर्टी ले ली हो, ऐसा जनरली होता नहीं है। ये ऐसा कंडीशन है इस हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट का कि जो कंप्लीटली अगेंस्ट द परचेजर जाता है, बट इसको रखा इसलिए गया है ताकि उसके मन में डर रहे, क्योंकि अगर क्रेडिट सेल हो ना, क्रेडिट सेल हो तो वेंडर जो है वो सिर्फ पैसे का मालिक है, पैसे के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो परचेजर है वो उससे आप पोजेशन नहीं ले सकते जो भी प्रॉपर्टी आपने उसको बेची है। तो इसके लिए एक सेफ्टी के लिए, ताकि किसी तरीके की बदमाशी परचेजर के साइड से ना की जाए, ये एक हार्श, बहुत ही कठोर कंडीशन जो कि रखा गया है इनके परचेजर के अगेंस्ट। उसके दो ही कंडीशन है कि वो बदमाशी ना करे और उसके पास कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, क्योंकि गाड़ी वगैरह जब टर्मिनेट का मीनिंग होगा समाप्त किया जाना, खत्म करना, तो उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसका सिक्योरिटी यही होता है कि वो जब चाहे तब प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले सकता है। तो ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि ऐसा अगर हायर वेंडर करने लगे तो फिर क्या है, खराब माहौल तैयार हो जाएगा और कोई भी हायर परचेज के अंतर्गत प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहेगा, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के लिए ये चीज रखी जाती है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, in case of default, in case of default, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है, रखो तो वहां पे। वैभवी शिखा कह रही है 0.6 रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। डिफॉल्ट का स्पेलिंग मैंने डाल दिया है, आप लोग लिख लेंगे इसको। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, पॉइंट नंबर 6 रिपीट करने के लिए कहा गया है। ईच इंस्टॉलमेंट पार्टली कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस चार्जेस, अंडर ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिख लीजिए, एंड पार्टली ऑफ कैपिटल पेमेंट। रजत, तुम्हारे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये पॉइंट एंड ही होने वाला है, ये फीचर्स वाला, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, in case of default in respect of payment of in case of default in respect of payment of even last
इंस्टॉलमेंट के बाद कॉमा दे देना, लास्ट इंस्टॉलमेंट कॉमा। द हायर वेंडर हैज द राइट, द हायर वेंडर हैज द राइट टू टेक द गुड्स बैक। संभावी पॉइंट नंबर 7 रिपीट कर देंगे, जरा सा इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। In case of default in respect of payment of even the last installment, comma, the hire vendor has the right to take the goods back without making any compensation, any compensation, compensation का स्पेलिंग हम डाल दे रहे हैं, विदाउट मेकिंग एनी कॉम्पेंसेशन। अभी हम लोगों ने बात की कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता है, गुड्स किसका रहता है, सेलर का ही रहता है। लेकिन अगर बीच में वो पोजीशन ले लेता है, कब्जा अगर सेलर गुड्स का, तो उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी सेलर के द्वारा परचेजर को। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो यूज करने के बदले में चार्ज पेमेंट कर रहे हैं। तो समय बीता और आपने उसका पेमेंट किया, तो चार्जेस का पेमेंट किया है आपने, प्रॉपर्टी का पेमेंट नहीं किया है, तो इसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं देगा वो। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द हायर परचेजर, it is the duty of the hire purchaser to keep the goods it is the duty of the hire purchaser to keep the goods in good condition, in good condition till the last installment is paid, till the last installment is paid। till the last installment is paid, the last installment is paid। क्योंकि क्या है, जो संपत्ति आपको दी गई है वो यूज करने के लिए दी गई है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस एसेट को, उस गुड्स को अच्छे कंडीशन में रखें। अगर अच्छे कंडीशन में नहीं रखते हैं तो सेलर अगर आपसे चाहे तो क्षतिपूर्ति वसूल कर सकता है फॉर डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ रजत, चार्जेस तो महंगा होता ही है, अगर वापस लिया जाए तो वो तो क्या होता है, 9 का लकड़ी 90 का खर्च, या जो कहा जाता है ना, तो वो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर 5 में से 4 इंस्टॉलमेंट आपने दिया है और 5वां नहीं दे पाए और उस वेंडर ने अगर आपसे वापस ले लिया, तो वो तो महंगा तो पड़ेगा ही आपको। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज। ये टॉपिक लिखवा रहे हैं, डील नहीं करवाएंगे, टेंशन मत लो तुम। हाँ, पॉइंट नंबर 7, यस 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 यस, पॉइंट नंबर 7, सॉरी। द प्रॉपर्टी इन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन गुड्स, the property is in goods is passed to the hire purchaser, the property in goods is passed to the hire purchaser on payment of last installment, on payment of last installment, the property in goods is passed to the hire purchasers on the payment of last installment। चलो।